So, welcome to the business statistics lecture. Thank you so much for joining it. We have already completed the definition of statistics and now we are going to start with application of statistics. मतलब ये जो statistics है वो कहाँ कहाँ पर कौन से जगह में apply होता है. So, statistics plays a vital role in every field of human activity. It's used in virtual every sector of business and government, including medicines, insurance, agriculture, computer science. Now, statistics hold a central position in almost every field like industry, commerce, trade, physics, chemistry, economic, mathematics, biology, botany, psychology, astronomy, etc. So, application of statistics is very wide. Now, we discuss some important fields in which statistics is commonly applied. So, what they are saying is statistics plays a very important role in the field of human activity. Now, what are human activity? Wherever we work, whatever we do are human activities. Even if we sort out our groceries at home, that is also a human activity, right? So even if we brush ourselves, our teeth, and even if we bath, that is a human activity. So any activity which gives a conclusion is human activity. So it is virtually used in every sector of business and government, including medicines. Now, what is used virtually? Statistics. We need to present our statistics on PowerPoint presentation slides, on soft copies, or on Word documents. Now, what happens with this? इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि we have a data which is segregated, which is well structured, which is well managed, right? And which is prepared in a diagrammatic format. क्योंकि अभी देखिए ना आपके सामने 15 लाइन या 10 लाइन का एक स्क्रीन दिख रहा है. हम लोग वो अगर रीड करते बैठेंगे तो इट विल टेक टाइम. लेकिन अगर वो डायग्रामेटिक फॉर्मेट में है, इफ इट इज इन डायग्रामेटिक फॉर्मेट, तो वो बेटर होता कि हम लोग एक नज़र में ही रीड करते. ठीक है. सो अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग को एप्लीकेशंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के. ना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमें डे टू डे लाइफ में लगता है वो है बिजनेस. सो फॉलोइंग आर द मेन यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटी. अब अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज में ये जो फॉलोइंग नाम दिए गए हैं वो इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज होता है. ठीक है. उसमें हम लोग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लेते हैं. अगर मार्केटिंग कोई कर रहा है और 3-4 प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. ठीक है. सो वो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कौन से डिपार्टमेंट को कितना जा रहा है. तो डिपार्टमेंट वाइज हमें पता चलता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे है. अगर एक्सपेंडिचर हम लोग को चेक करना है तो डिपार्टमेंट वाइज वी कैन सेग्रीगेट मे बी इन बार डायग्राम, पाई डायग्राम और एनी अदर फॉर्मेट ऑफ डायग्राम. सो चलिए रीड करते हैं कि बिजनेस में कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिक्स का. By using the techniques of time series analysis, which are based on statistical method, the businessman can predict the effect of the large number of variables with fair degree of accuracy. So, by using the technique of time series, by using of technique of time series of statistics, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज में हम लोग टाइम एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ दीज आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड. तो स्टैटिस्टिकल मेथड में हम लोग एक टाइम सीरीज टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करते हैं. सो बिजनेसमैन कैन प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल. सो बिजनेसमैन एक एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन लेकर चलते हैं कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम लोग को मिले. So this is the first thing. So by using the technique of time series analysis, which is based on the statistical method, the businessman can predict the effect of large number of variables with a fair degree of accuracy. Okay. Now, with the help of statistical methods, a businessman can make correct decision about the location of business. अब statistical method से business कहाँ पे जा रहा है, कौन से direction में जा रहा है, कौन से location में है, वो हम लोग easily पहचान सकते हैं. जैसे कि मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेस. तो अगर हम कल्याण की बात करें तो कल्याण में कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है हमारा, कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कल्याण ईस्ट में फोकस करना है या वेस्ट में फोकस करना है.
या फिर हमें नियर बाय विट्ठलवाड़ी फोकस करना है, राइट? सो हमें ये कैलकुलेशंस, ये सिस्टम्स टेक्सचुअली भी पता चलती है, बट उनको अगर आप टूल्स या फिर ऐप स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करते हो तो दैट बिकम्स अ ग्रेट आउटपुट. Statistics helps businessmen to plan production according to the taste of the customers. The quality of the product can also be checked more efficiently by using statistical method. अब अलग अलग कस्टमर्स के, अलग अलग लोगों के जो टेस्ट है वो बदलते रहता है. सो आप इसको अगर टैबुलर फॉर्मेट में या टेबल फॉर्मेट में अगर इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली कौन से कस्टमर्स या कौन से टाइप के कस्टमर्स का कौन सा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है. जैसे कि लेज है, लेज में 3 फ्लेवर है, एक टोमेटो फ्लेवर है, एक सॉल्ट है, और एक येलो वाला कोई तो पैकेट मिलता है, आई फॉरगॉट दी फ्लेवर, राइट? सो वो 3 फ्लेवर्स को अगर आप टेबल फॉर्मेट में रखे एंड उसमें लिखे कल्याण सिटी में इतना नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम लोग मार्केट करते हैं, कल्याण ईस्ट वेस्ट अगर और डिवीजन करना है तो वी कैन डू दैट, फिर थाने में हम लोग इतना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो टैबुलर फॉर्मेट में अगर वो डेटा है तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज हम लोग जो स्टैटिस्टिकल डेटा है. तो आफ्टर बिजनेस इट ऑल्सो हेल्प्स इन इकोनॉमिक्स. बेसिकली इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा हम लोग को स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल होता है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का एक अल्टरनेट कनेक्शन है. ठीक है. सो नेशनल इनकम अकाउंट्स आर मल्टीपर्पज इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. स्टैटिस्टिक्स दैट पर्पस इंडिकेटर, तो वो मल्टीपर्पज इंडिकेटर है, और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो अगर स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में होगा तो इकोनॉमिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के लिए बेटर रहेगा. जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट्स. ठीक है. अब इकोनॉमिक रिसर्च में स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों के लिए. एक तो कलेक्शन एंड एनालिसिस. एक तो डेटा कलेक्ट करो और एनालाइज करो डेटा को, एंड उसके बाद लास्ट में हाइपोथेसिस का टेस्ट करो. देन द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इज स्टडीड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, बिकॉज कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, और कितना हमें कवर अप करना है, या गैप बिटवीन दी demand and supply. Demand is of 100 units, supply is of 90 unit, तो gap is of 10 units. ठीक है. उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन रेट, पर कैपिटा इनकम, देखिए सारे डिटेल जो है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में हमको दिखते हैं और लिखा जाता है, लेकिन वो रीड करने में कंफ्यूजन होने के चांसेस है. सो स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा. वो डेटा को आप एक अच्छे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रेजेंट करोगे, एंड उसके बाद जो थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है जिनको आप ये डेटा दिखाओगे वो रीडेबल होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए. कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले इंफॉर्मेशन या डेटा हमें नहीं चाहिए या ज़रूरत नहीं है. Then third is in natural science. Statistics plays a vital role in almost all the natural sciences. Statistical methods are commonly used for analyzing the experiment result, testing their figures, significances in biology, medicine, zoology, meteorology. ठीक है. अब 10th का साइंस बुक, साइंस का जो पार्ट 1 बुक है या पार्ट 2 बुक है, उन दोनों को थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करो. एक टेबल होता है जहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा होता है, उसमें क्या क्या हम लोग ने एडिशंस किए हैं सॉल्यूशंस का या फिर केमिकल्स का, एंड उसके बाद आउटपुट करके एक लिखा रहता है. सो एक्सपेरिमेंट का नाम, सॉल्यूशंस एडेड और कंटेंट्स एडेड और यूज्ड, एंड देन फाइनल सॉल्यूशन आपको क्या मिला है वो आपको नेचुरल साइंस में दिखाई दिया जाता है. ठीक है. सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है. अब कोविड के टाइम पे भी स्टेटिस्टिकल डेटा जो है हमें
दिखाया गया। आज भी हमें जो डेटा दिखाते हैं वो टैबुलर फॉर्मेट में दिखाते हैं, टेबल फॉर्मेट में दिखाते हैं। क्यों? बिकॉज वो इजी टू अंडरस्टैंड है और एक टेबल में सब इंफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है। कोविड 19 कोविड 19 के आज इतने हॉस्पिटलाइज्ड हुए, इतने डिस्चार्ज हुए और एक्स वाई जेड हमारे डेथ हुए टोटल फॉर द डे। और पूरे हफ्ते का भी ऐसा, पूरे महीने का भी, पूरे 15 दिन का भी ऐसा टेबल फॉर्मेट में हमें दिखाते हैं। And then when you talk about in social science, statistical data provides information on mortality, marriage, population and growth. So कौन से कंट्री में कितने पॉपुलेशन है? अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, उनका अगर आपको पॉपुलेशन क्राउड अगर जानना है तो पाई चार्ट या पाई डायग्राम इज बेटर। बिकॉज एक सर्कल बनाओ, 360 डिग्री या 360% का वो पाई डायग्राम होता है। हर एक का कैलकुलेशन निकालो परसेंटेज वाइज एंड पाई डायग्राम में आप सबके परसेंटेज लिखो। इससे क्या होगा, आपको एक सर्कल में पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा। अदरवाइज आपको हर एक स्टेट को टाइप करना है, टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, वो भी एक बेटर है। बट मोर यूजफुल पैटर्न इज पाई डायग्राम, बिकॉज वो इजी टू अंडरस्टैंड है। नॉर्मल टैबुलर फॉर्मेट बनाओगे तो वो नेम एंड परसेंटेज ऐसा दिखाएगा। ठीक है। देन इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। बेसिकली हम लोग जो पंचांग या फिर जो हमारे वो एक बुकलेट आता है, कुछ तो बोलते हैं उसको, हमारा जो राशि भविष्य होता है, वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में उसको और डिजाइन करते करते सबका वो जो भगवान के पोजीशंस है वो मेंशन करते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो राशि है, उस हिसाब से आपकी राशि को वो पोस्टिंग करते हैं। एंड देन वो आपको बताते हैं कि केतु कौन से ग्रह में बैठा है, राहु कौन से जगह में बैठा है, ठीक है, सूर्य कौन से जगह में बैठा है। सो एस्ट्रोनॉमी में भी स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी चीज एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिखा रहे हो तो दैट इज स्टेटिस्टिक्स। सो ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। तो एक स्क्वायर में वो सारा डेटा इनपुट करते हैं एंड देन वो एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। देन लास्ट इज इन स्टेट मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। अगर समझो हमारे कॉलेज का एडमिशन कितना हुआ है ओवरऑल, तो वो भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में बताना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डायग्राम ही, टेबल भी हो सकता है, ठीक है, ग्राफ भी हो सकता है। अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स है जो शायद हमें आगे देखने मिलेंगे। ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर वो पूछे कि ओवरऑल एडमिशन कितने हुए, तो टेबल फॉर्मेट में बताएंगे। बीएससी में एक्स वाई जेड, फिर बीएससी में भी आईटी और दूसरा है कंप्यूटर साइंस, फिर बीएमएस। अगर एस वाई टी वाई का बात कर रहे हो तो फिर एस वाई में भी अ, 3 स्ट्रीम्स है, एचआर, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। टी वाई में भी 3 स्ट्रीम्स है, एचआर, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। बीकॉम लेंगे तो बीकॉम में भी प्लेन बीकॉम एंड बीकॉम विद आईटी या बीकॉम विद अकाउंट्स है। राइट। अगर और डिविजन्स है जैसे बैफ है, बीएमए है, अगर ये है तो उनके भी अलग अलग डिविजन्स है। सो वो आपको कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो वो आपके ऊपर है। जो प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं, जो डेटा रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है। बट ओवरऑल हमें वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में अगर प्रेजेंट कर पाए तो दैट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कंसेप्ट वाइज खत्म कर रहे हैं, बिकॉज एक ही बार में अगर पूरा लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। सो स्लो एंड स्टेडी। नाउ इट्स योर टाइम टू आस्क द डाउट्स एंड क्वेश्चंस। आई एम इनेबलिंग द चैट बॉक्स, तो चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो।